सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ये तेरा ये मेरा ये तकरार क्यों है। ये नफरत हदों की दीवार क्यों है। ये तेरा ये मेरा ये तकरार क्यों है। ये नफरत हदों की दीवार क्यों है। दीवार क्यों है। चले तोड़ पिंजरा जो पंछी चला हो। चले तोड़ पिंजरा जो पंछी चला हो। न शिकवा शिकायत न कोई गिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दिया जिसने जीवन जगत ये सजाया हो। प्यार उसका ये दिल में समाया। दिया जिसने जीवन जगत ये सजाया हो। प्यार उसका ये दिल में समाया। दिल में समाया। लगन की सदा ही लगी
खुशियाँ और मन खिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। Om Shanti. Good evening and a very warm welcome to all of you. I would request Shruti Behan, आज हम सभी को वो आज की प्रवक्ता आदरणीय सिस्टर बी के डॉक्टर मंजू गुप्ता जी का परिचय हम सभी को देंगी। श्रुति बहन। Shanti to all of you, and a very hearty welcome to our dear sister, Dr. Manju. Thank you for joining us. We have been waiting for this session. And Manju, when I've been shared your bio data, which runs really small, I am sure there is a lot more which we can tell the viewers today about you. But let me start with it. I got to know that you're currently working as a co-director of Nirogam Medicare. And Sister Manju, she has done her graduation from SN Medical College, Agra. And she has her specialization in OBS and gynecology. And she did it from Delhi University. She has also been the head of the Department of Nursing Home in Hindu Rao Hospital, MCD Delhi. She has also worked as additional MHO in MCD Delhi. So Delhi government has also honored her with Distinguished State Award for Outstanding Services by the Honorable Chief Minister of Delhi. And why not? I just got to learn that she has been rendering her services to not only the PKs but also the non-PKs in a very wonderful manner. So she has a very beautiful program which is being run under her, and this is especially for the expectant mothers. The program is named as Divine Mother and Virtuous Baby. Isn't it very interesting? So the mothers along with the spouse, they are given special training. So it is about the physical and the mental health. So she tells us about the diet, the exercise, and what kind of meditation is helpful for us in those days. Keep a positive mindset throughout the pregnancy. This significantly decreases the complications in pregnancy and helps mother to deliver a divine virtuous baby. So that's a step towards building a beautiful world, isn't it? She has been associated with Brahma Kumari's World Spiritual University for last 34 years, and she's practicing Raj Yoga meditation herself every day. She's an avid speaker, and she has given umpteen lectures and conducted symposias in various organizations and forums. Besides this, she is actively involved in various community and media activities and has given talks on topics dealing with personal and professional life, addressing various emotions and day-to-day problems. She has given regular talks on radio and television dealing with various aspects of life and daily stress. So the times that we are encountering nowadays, and today, when we are all here together, not only that we will be listening
to the highest authorities version. And Manju Behan will also be sharing her experiences today, which I'm sure are going to be helpful for all of us. Reading the experiences, just reading the experiences that she has to share with us, I'm sure there is a lot we can learn today. Thank you, Manju Behan, for joining us today. Welcome. Thank you so much, Shruti Ben, for such a elaborate and long this thing. I think this is all due to the Almighty Authority that we are here together, because He has made this whole world as a divine family. Otherwise, nobody can have that much of love for the whole world. Because now we feel, and I hope each one of us must be experiencing that knowing this knowledge, coming to this gyan, is a wonderful thing. That we have got the intellectual eye with which we realize that physically the bodies which we take, we leave costumes, but the permanent thing and the living entity in this body is the soul. Do you all agree to this? Yes? I will see the whole gallery so that I can visualize each and every one of you. Can you open your videos? So we have a wonderful meeting today, sitting in the same drawing room or in a class. So today we feel that we are all energies. We are all living entities in this costume. We are all actors. Do you all agree to this or no? Yes? That is why we are here today. Before coming to this place, this knowledge, we didn't know anything about us. We always felt that I am this costume, ye body, my name is this, my profession is this, and my possessions are this, my family is this, and we were always talking as our professionals, as our possessions, but we never ever saw that residing inside this body is some energy, right? So when I came to this knowledge, it was an eye-opening, it was a wonderful thing. I never ever realized, we सोचते थे डॉक्टर साहब आप भगवान का दूसरा रूप है. It used to make me think, how? इसका मतलब पहला डॉक्टर भगवान है, अगर हम दूसरा रूप हैं तो भगवान क्या करता है, वो डॉक्टरी कैसे करता है? And when coming to this knowledge, absolutely clear, we are all human beings. The humus is the body, the costume, and being is the living entity inside. हमारे लिए बहुत सिंपल है समझना, because when the patient comes, it is a living entity. Patient so and so. हमने उसका इलाज किया, सब कुछ कोशिश की. At times when you are not able to save the patient, and the patient leaves the costume, हम क्या कहते हैं? Take the body away. He's no more. The life has gone. Arathi. The light has gone. Take it. Why body? It was an human being came walking to this hospital, चाहे कितना भी बीमार था, लेकिन चला गया. कौन चला गया? And now we know कि वो जाने वाली एंटिटी जिसको कहते चल बसा, ये शरीर छोड़ा, कहीं और जाके बसा. So being a gynecologist, I had this answer that at the level of 4.5 months, when the patient is pregnant, the soul enters and then the body moves inside. जिसको हम कहते क्विकनिंग. आपको फील होता है? So I got these beautiful answers. और इस सत्य ज्ञान ने
जो कहीं भी किताबों में नहीं लिखा हुआ है। हमें कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम जीते जी तुम आत्मा हो। ये शरीर लेकर हम भिन्न भिन्न रोल प्ले कर रहे हैं। इफ आई आस्क यू, आप अपने बचपन में चले जाइए, अपने उस बचपन को देखो। जब हमने चलना शुरू किया हम तब भी थे, धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल गए तब भी थे, कॉलेज किया तब भी थे, डिग्री मिली हम तब भी थे। एक्सटर्नल हमारा सब कुछ चेंज हो रहा है, बट आई वॉज देयर, आई एम हियर एंड आई विल बी आफ्टर दिस ऑल्सो। इट्स अ वंडरफुल थिंग जो हमें बताती है कि इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर मैं आत्मा हूं। जहाँ हम एनेटमी फिजियोलॉजी बॉडी की पढ़ते हैं, यहाँ हम एनेटमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी सारी क्लिनिकल मेडिसिन आत्मा की पढ़ते हैं। और पढ़ाने वाला है सुपर पावर, जिसको हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम। My all relations are with you. How can one person can have the all relations with us? So we know that body has different relations, mother alag, father alag, teacher alag, and the preceptors are alag. But the soul has only one, all relations with the superpower. Do you all agree to this? Yes, yes. Right? Can you digital hand भी raise करेंगे? Yes, yes. It is so simple, and it has got a भंडार जो हम आते हैं और हमारे साथ ही चला गया. We were begging for peace, love, happiness in our life. We were going to temples, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, संतों, महंतों, ना जाने हम किस किस की याचना करते थे कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, प्यार मिले, खुशियां मिले. And now here I, the soul, is the master ocean of all these powers. Because my father, he is the ocean. भगवान की गुहार लगाते हैं कि भगवान हमें सुख दो, शांति दो, आ जाओ इस धरती पर, हमारे दुख हरो, हमें ले जाओ इस पाप की दुनिया से कहीं दूर. बोला हमने, है ना? कितना सुंदर है, सभी हो सुखी सभी का भला हो. ये दीवारें क्यों हैं नफरत की? क्योंकि आज हम एक दूसरे को बॉडीज देखते हैं. बॉडीज देखते हैं तो हमारे बीच में कितनी दीवारें आ जाती हैं. नेशनैलिटी, रिलीजियंस, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, पुरुष स्त्री, बालक बूढ़ा, है ना? प्रॉपर्टीज को लेकर, पढ़ाइयों को लेकर, पावर, पेनी, पोजीशन, सो मेनी थिंग्स दे कम इन बिटवीन. एंड वंस वी रियलाइज दैट वी आर ऑल एनर्जीज. इस शरीर को चलाने वाली हम शक्तियां हैं, हम आत्मा हैं. हम उस परम शक्ति परमेश्वर की, जिसको हम ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, परवरदिगार कहें, नूरे इलाही करें, जिन कौन शिकी कहें, सिद्ध शिलापति कहें, whatever he may call, but he is only one. Yes, you agree to this? He is only one supreme energy, and we belong to that supreme power, so we are all one. और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, लाइफ बड़ी हेक्टिक होती है. एंड वंस यू हैव योर फैमिली लाइफ, उसमें भी आपके साथ आपके बच्चे, परिवार, प्रोफेशन, सब चीज़ों को साथ में लेकर जब आप चलते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं. लेकिन इस ज्ञान से आपको चलना बहुत आसान हो जाता है. चाहे आप घर में, आपको पता है कि आज जो मेरे परिवार में है वो सब बच्चों के रूप में, मेरे सगे संबंधियों के रूप में, वो सब एनर्जीज हैं. दे आर ऑल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स. और हम लोगों को अपना पार्ट बहुत ही खूबसूरत अदा करना है. हर जिम्मेवारी को निभाते हुए, चाहे हम घर में रहते हैं, घर को हम समझते हैं कि ये एक सेवा स्थान है. दिस इज अ गॉडली हाउस. इट इज अ हाउस ऑफ गॉड, जिसका कि बड़ा वो सुपर पावर है.
हम उसकी संतान हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए? तो वो घर का जो एनवायरनमेंट है वो बदलना शुरू हो जाता है। जो आपके साथ में, आपको लगता नहीं कि बच्चे हैं छोटे, आपको लगता है ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। दे ऑल बिलोंग टू दैट सुपर पावर। भले इंस्ट्रूमेंट्स उनके छोटे हैं, बट दे हैव देयर डिफरेंट वैल्यूज विद इन देम। हमको तो सिर्फ एक भाग्य मिला है कि इनको हमें तराशना है उस नॉलेज से। आप देखो, आपने मुरली सुनी 2-3 दिन कि भगवान किस तरह से हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु बनकर हमारी कितनी श्रेष्ठ पालना करता है। कभी भी हमको अब शब्दों से नहीं बुलाता। ही ऑलवेज कॉल्स अस। हमारे भाग्य को देखता है, हमें इतना ऊंचा ओहदा देता है। तुम मेरी संतान, कितने ऊंचे हो, कितने भाग्यशाली हो। तुमने इस यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर रोल्स प्ले किए हैं। बच्चे, तुम ही कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी थे, वर्ल्ड के मालिक थे। धीरे धीरे लॉ ऑफ एंट्रोपी है, हर चीज नई से पुरानी होती है। आत्मा को, बैटरी को कभी चार्ज ही नहीं किया। सब वो खजाने हमारे धीरे 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 डिप्लीट होते गए। अब आप देखो, छोटा बच्चा आता है, धीरे धीरे बड़ा होगा, किशोर बनेगा, फिर जवान होगा, उसके बाद में उसकी वानप्रस्थ अवस्था आती है, बूढ़ा होता है, शरीर छोड़ के चला जाता है। सो एवरीथिंग क्रॉसेस थ्रू दीज स्टेजेस। इसी तरह हम भी कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन हमें आज भी वो सुख, शांति, खुशियाँ जीवन में चाहिए, क्योंकि हमने उसका अनुभव किया है। अब हम उसको मांगते हैं। सो दिस नॉलेज हेल्प्स अस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। चाहे हमारे रिलेशंस हैं, चाहे हमारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। आई टेल यू, वंस यू नो दैट आई एम एनर्जी, आई एम ड्राइवर, दिस इज माई कार। और जिंदगी में जैसे गाड़ी को सड़क पर चलने के लिए ड्राइवर को भी बड़ा होशियार होना चाहिए, तो गाड़ी भी ठीक चले, गाड़ी भी ठीक होनी चाहिए। हमने अभी तक केवल गाड़ी पर ध्यान दिया। वी ऑलवेज लुक्ड आफ्टर अवर बॉडी, नेवर एवर लुक टू द ड्राइवर इनसाइड। तभी कहते हैं खुदा जब आते हैं तो कब्रों से रूहों को निकालते हैं। इस मिट्टी की कब्र में ये रूह दबी हुई थी। खुदा ने आके बताया कि तुम रूह हो, ये विनाशी है, और इस रूह के पास इतना खजाना है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, इसलिए तुम ये ज्ञान दिया कि तुम रूह हो, नॉलेजफुल बनाया। यू आर सो प्योर। मन वचन कर, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ पीसफुल, you are so happy and loving soul because you belong to me. तुम मुझसे प्यार के सागर हो, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहते हैं ये प्यार तो तेरा नेचुरल नेचर है बच्चे। तुम बूंद कौन सी मांग रहे हो? सिर्फ यू कनेक्ट विद मी, अपना मन मुझ में लगाओ, तो मेरी सारी पावर्स तुमको ऑटोमेटिकली प्राप्त होंगी। जैसे हम करते हैं ना, कोई चीज भरी हुई होती है, अब हम उसको उंडेल कर छोटे में डाल नहीं सकते, तो साइफन लगा देते हैं, तो साइफन से जो बड़ा कंटेनर है उससे छोटे में आ जाता है। इन द सेम वे व्हेन आई कनेक्ट टू द सुप्रीम पावर, ही इज ओशन ऑफ एवरीथिंग। कनेक्ट करना मना उसको याद करना, उसके संग में रहना, और जब हम उसके संग में रहते तो उसका रंग हमको लगेगा ही लगेगा। कंपनी कलर्स यू एंड ही इज सो पावरफुल कि उसकी जो सारी एनर्जी है वो धीरे धीरे हमारे अंदर फ्लो करती है। और जो हमारी लक्यूनीज है, हमारे अंदर जो बुराइयां आ गई थी बॉडी कॉन्शियस होने से, हमारे अंदर लस्ट, एंगर, ईगो, अटैचमेंट, हेट्रेड, कितना कुछ हमारे अंदर ये सब भर गया था, धीरे धीरे ये सब वापस निकलने लगता है और हमारी आत्मा प्यूरिफाई होने लगती है। तो आप सोचो, जब ऐसे पवित्र होंगे, हम अपने को एनर्जी देखते हैं, दूसरों को भी इतनी पवित्र एनर्जी देखते हैं, तो रिलेशंस कितने अच्छे हो जाएंगे। मुझे भी प्यार चाहिए, उनको भी प्यार चाहिए, लॉ है, हम देना शुरू कर देते हैं।
तो आपका घर में भी सबसे रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। आप जिस वर्किंग प्लेस पर जाते हो वहां भी आपको लगता है ये मेरी अनदर फैमिली है, वहां आपके रिलेशन सबसे बड़े कितने सुंदर बन जाते, कॉर्डियल। तो आई टेल यू डेली बाबा, what is this मुरली? दिस मुरली इज फूड फॉर आवर माइंड। जैसे बॉडी को हमें रोज रोज भोजन चाहिए, और एक सा भोजन खाते खाते रोज कोई भी बोर हो जाएगा। इन द सेम वे ऑलमाइटी शिव बाबा अथॉरिटी, द सुप्रीम फादर, he gives us the food for our mind. Every day new thoughts. He talks to his children as a teacher, as a preceptor. वो हमको प्योरीफाई करता है। बच्चे मुझे याद करो, मेक मी योर कंपेनियन, बी इन माई कंपनी। तो जो भी आपके चाहे पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं, अब ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं अरे भगवान आपके जीवन में आ गया, आपको भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप भी बीमार होते हो। क्यों नहीं होगा? हमारे शरीर की भी बीमारियां आएंगी, हमको मन की भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हमको धन की भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमें संबंधियों से भी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आजकल देख रहे हैं ना सारी दुनिया में क्या हो रहा है, तन से भी रोगी, संबंधी हैं वो भी परेशान है, नोबडी कैन मीट देम। कितना डिस्टेंसिंग हो गया है, कितना बाबा ये हमें पहले से प्रिपेयर करता है कि बी सोल कॉन्शियस। संबंधों में आते हुए भी तुम जब मुझे साथ रखते हो तो वो है सच्चा लव तुम्हारा। तुम दूसरों को उठाते हो, उनको शक्ति देते हो। से फॉर एग्जाम्पल, बीमार पड़ा है पेशेंट आपके सामने, रोगी है, चिल्ला रहा है, जब आप उसको ये बताते हैं कि आपकी गाड़ी बीमार है, आप तो ठीक है ना, आपका मन अगर ठीक है, गाड़ी अलग है, आप अगर पॉजिटिव सोचते हो कि कल मैं ठीक था, आज बीमार हूं, कल ठीक हो जाऊंगा, बस कल, आज और कल का ही तो खेल है। द पर्सन इज एम्पावर्ड, और उसके अंदर शक्ति आ जाती है उस प्रॉब्लम को बेयर करने की। और हमने देखा कि मरीजों पर इसका हमने किया एक्सपेरिमेंट, और स्वयं पर किया। मुझको सार्कोइडोसिस की बीमारी हुई, कोई कहीं समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर्स को, पर मुझे पता था एक बल एक भरोसा, होना ही है ठीक। और मैंने डॉक्टर को बोला, जब डायग्नोज हुआ, बड़ा इम्पॉसिबल था डायग्नोज करना, लेकिन उसके लिए भी रास्ता निकल आया, बिकॉज आई वॉज पॉजिटिव कि मेरी ये बीमारी ठीक होनी है। डॉक्टर को मैंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे कोई दवाई नहीं खानी है, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टीरॉइड्स और स्टीरॉइड्स के साथ में एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट सब बताया। लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि ये टीबी तो है नहीं, आई मेडिटेट एंड आई विल बिकम ऑल राइट। उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, गो अहेड। और मैंने मेडिटेशन के थ्रू, मेरे बराबर टेस्ट चलते रहे। आई यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल फोर्टनाइटली, और फिर उसके बाद मंथली, ऐसे 3 साल तक ये चलता रहा। एंड आई बिकेम परफेक्टली ऑल राइट। माई पल्मोनरी फंक्शंस वर बेटर देन अ नॉर्मल पर्सन। इतनी ताकत है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, इससे सारा हमारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, सारा हमारा नर्वस सिस्टम कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो हार्मोनल सिस्टम। इसीलिए आजकल साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स, मनोकायिक रोग इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मन दुखी है, उसका प्रभाव काया पर, तन पर आता है। यस और नो? यस और नो? हाँ, क्योंकि हाइपर टेंशन, व्हेन द टेंशन इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर राइजेस। ब्लड प्रेशर राइज होगा तो एंजाइना आएगा, एंजाइना रिपीटेडली आएगा तो एमआई हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको स्टेंटिंग कीजिए या आप उसकी सर्जरी कीजिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन रूट कॉज इज द माइंड, माइंड इज द रूट। इसी तरह बहुत सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू, क्योंकि सागर से अनुभव है जो मैं इतनी छोटे से समय में
आपको मैंने टेस्ट दिया। आप देखो आजकल के ज़माने में बच्चों को बड़ा करना, हम उनकी खाली शारीरिक रेख देख करते हैं, बच्चों को पालना, लेकिन आई फील सो लकी दैट आई केम टू दिस ज्ञान so early in my life that I got full support of Almighty कि बच्चों की पालना कैसे करनी है। आज हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम भाषा कैसी यूज करते हैं। We'll always compare, आज रिजल्ट आया, तेरे नंबर कितने आए, उसके नंबर ज्यादा है, तेरे कम क्यों है। We never ever appreciate our children. अभी क्या होता है, once you have this knowledge, you feel the emotions of the other person also. You always support, you always give them respect. They are unique personalities on this earth. Maybe their costumes are small, but they are unique children of supreme power. हमने तो सिर्फ कॉस्ट्यूम ही तो दिया है ना, लेकिन जो उसका ड्राइवर है, जो उसके अंदर एक्टर है, वो तो उसकी संतान है। तब हम कहते हैं हम तेरे सब बच्चे हैं, तू मालिक, तेरी है जमीन, तेरा है आसमान, तू बड़ा मेहरबान, खुदा मेरे बख्शिश कर, उसको बुलाते हैं। बट टुडे वी नो हु ही इज एंड व्हाट ऑल ही इज डूइंग टू अस। कितना वो हम बच्चों को ज्ञान देकर आगे बढ़ा रहा है, समझ दे रहा है कि बच्चे खाली ये एक एपिसोड नहीं तुम जी रहे, ऐसे तुमने कितने सारे एपिसोड्स प्ले किए हैं, कहाँ से तुम उतरते उतरते यहाँ आए। आपको याद है वो टाइम व्हील आपने किया है ना, स्वास्तिका, डिड यू डू दैट टाइम व्हील, गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन, है ना, काल चक्र आपने किया ना, वो द टाइम व्हील, हाउ द टाइम्स आर चेंजिंग। अभी इसी जन्म में ही आप देखो कितना समय बदल गया है ना, कितना समय कहाँ से कहाँ, ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन, अभी तो फास्ट डाउनफॉल है, एवरीथिंग इज फेलिंग। लेकिन हमें अपनी स्थिति को बहुत बहुत संभाल कर शक्तिशाली बना करके रखना है। इफ आई एम कनेक्टेड टू हिम ऑल द टाइम, आई गेट द एनर्जी। कैसी भी हालत होगी, हम खुद भी एनर्जेटिक रहते हैं और हम औरों को भी वो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, बिकॉज वी हैव अ टेलीपैथिक कनेक्शन, सुप्रीम पावर से लेना और उसके बाद सारे विश्व को देना। आपको लगता है ऐसा होता है? आप यहाँ आए हैं, इतने ही दिनों में आपको अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देता है? यस और नो? डू यू फील यस? है ना, क्योंकि समझ आने से हम इग्नोरेंट थे, हमने उन चीजों को कभी यूज ही नहीं किया, अनयूज्ड चीज चली जाती हैं। मरने के बाद कहते हैं फलाना चल बसा, ये अच्छे थे, ये ऐसे थे। अगर जिंदगी में हमें पता चल जाए हमारे पास कितना कुछ है, जिस प्यार को, जिस शक्तियों को, है ना, सहने की शक्ति, समाने की पावर, टू टॉलरेट, power to adjust, power to face, power to cooperate, power to withdraw, power to pack up. There are so many powers which we have, and now we get empowered because we are connected to the powerhouse. So this is very very important. Till now we were living only half life, खाली हम फिजिकल समझकर, फिजिकल जिंदगी, तो गाड़ी हमारी ऊपर नीचे हिचकोले खाती चल रही थी, रोते गाते, कभी हंस लिए थोड़ी देर, कभी अगले ही पल दुखों से भरपूर हो गए। लेकिन नाउ इट इज बैलेंस्ड। ह्यूमस प्लस बीइंग का जब बैलेंस जीवन में आता है तो गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चलती है। ये संसार एक सुंदर संसार नजर आता है और हर एक में हमें भगवान की वो वैल्यूज जो भगवान ने सबको दी है, सबको एक सा बनाया है, वो वैल्यूज दिखाई देती हैं और हमारी एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड जागृत हो जाती है, जो सुषुप्त है, जिसकी हम कामना करते हैं कि सभी हो सुखी, सभी का भला हो। तो खाली हम कहते नहीं, लेकिन हम उसके लिए नया इतिहास बनाते हैं। भगवान ने वो कलम हमारे हाथ में दे दी कि जाओ
और लिखो अपना भाग्य, श्रेष्ठ कर्म करो। उसके पहले अपनी सोच को बहुत सुंदर, उम्दा बनाओ, हाई क्वालिटी थिंकिंग। एज यू थिंक सो शैल यू बी। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। क्योंकि ये सोच हमें, जब हम सोचते हैं तो हम उसको विजुअलाइज करते हैं, हमारी इमोशंस होते हैं, एटीट्यूड्स बन जाते हैं। Then we speak also, then we do also. This makes our personality, and this personality then writes our destiny. So who is the writer of our destiny, me or God? Yes, who is the writer of destiny? Me, myself. Yes, I am. So it is a wonderful thing. हम इसको दूसरों पर नहीं टाल सकते। भगवान ने किया, माँ बाप ने किया। I am responsible for whatever I am getting. I cannot blame anybody for this. And now God gives me chance to write, because this is the time of transformation. चेंज तो मैंडेटरी है, होगा ही, लेकिन दिस इज द टाइम फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म। कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है, बिकॉज नाउ आई एम राइटिंग माई फॉर्च्यून फॉर 21 बर्थ्स। दैट इज इन माई हैंड, बिकॉज द सुप्रीम इज हेयर हु हैज गिवन मी दिस pen to write my destiny. Do great karmas, do elevated karmas in my remembrance. And the remembrance, जिसको आप याद करते हैं उसका आपके कर्म पर प्रभाव पड़ता है। आप किसी से नाराज है, क्रोधित है, वो आपके कर्म पर प्रभाव डालेगा। एंड इफ यू आर हैप्पी, खुश है ना, उसका लव आपके साथ है, तो आपके कर्म भी कितने सुंदर हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता? यस, हाँ, होता है कि नहीं होता? यस, दो तीन लोग रेस्पॉन्ड, आई कैन सी 2 of them, those who are responding and smiling also. Yes, ये हम सब की अपनी कहानी है। We are all sailing in the same boat. So it is a wonderful time that he has selected you. आप कोई इलेक्शन लड़कर नहीं आए हैं। God has selected you. He has adopted you to make you his heirs. वो अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको देने के लिए आया है, आपके जन्म जन्मांतर के भाग्य बनाने के लिए आया है। हमें तो सिर्फ एक हिम्मत का कदम बढ़ाना है ना। इस संसार में हम आए हैं, संसार से हमें कितना कुछ मिला है, लेकिन हमारे गिरने से ये संसार की क्या हालत हो गई है। आइए इस संसार को हम फिर से सुखी संसार बनाएं, खुशहाल बनाएं। जो भारत सोने की चिड़िया था, सारा विश्व, द होल वर्ल्ड वाज भारत, देयर वर नो डिविजन्स। आज हम फिर से ऐसा संसार क्रिएट करें। राइट? ऑल आर रेडी टू दैट? सब तैयार है ना उसके लिए? हाँ जी, श्रुति बहन तैयार है ना? सो वी शुड गो इन फॉर द मुरली, टुडेज मुरली। यस, ओके। तो आज की मुरली में बाबा ने यही बात स्पष्ट की है कि मैं तुम्हारा बाप, शिक्षक, सतगुरु, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिसेप्टर, with all the 3 relations I come before you. और तीनों ही रिलेशन से हमको बहुत प्राप्ति होती है। एज ए फादर हम उसके वर्षे के अधिकारी बनते हैं। एज ए टीचर ही टीचेस अस द होल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जो कभी किसी ने पढ़ाई ही नहीं। हमने सिर्फ 2500 साल की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी है, ओनली 2500 ईयर्स। और बाबा हमको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी 5000 ईयर्स की बताता है। जैसे बाइबल में भी लिखा है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया था, बट व्हाट वाज इट, नोबडी नोस, एंड ही टेल्स अस एवरीथिंग। एंड एज अ प्रिसेप्टर he purifies us, he takes us back to home and then to our new world, golden age। उसके लायक वो हमको
बनाता है। तो आज का सार है मीठे बच्चे। सी, वी हैव वी एवर टॉक टू अवर चिल्ड्रन लाइक मीठे बच्चे? लेकिन भगवान रोज रोज स्वीट चिल्ड्रन कह के हमको कितना स्वीट बना देता है, वो प्रभाव हम पर पड़ता है। मीठे बच्चे, तुम मेरे द्वारा, मुझ बाप के द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो, माना पिता भी है और पढ़ा भी रहा है, टीचर भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है, उसको टीचिंग्स देनी है, उसको कैरेक्टर्स कैसे होने, कैसे उसको बनना चाहिए, इन डिवाइन गर्भ संस्कार वी आर डूइंग दैट। माँ उसको, बच्चे को नर्चर करती है उसके खाने पीने से, लेकिन उसकी सोच से, उसके बोल से, वट एवर शी रीड्स, शी टॉक्स, द चाइल्ड लर्न्स इनसाइड। वो मैनर्स जो उसको तुम देना चाहते हो, वर्च्यूज, बच्चे को वो अब दो, क्योंकि ये भगवान से हम सीखते हैं। तो वो बता रहा है कि तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो, तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन तो जरूर बनना है, कंडीशन है, प्योरीफाई योरसेल्फ। और हम तो रोज गाते ही थे, मैं मूर्ख खल कामी पापी नीच, ओ गॉड प्लीज प्योरीफाई मी। मैं हूं, अब वो आया है हमको प्योरीफाई करने के लिए। बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? वी नो, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, एज अ फादर, एज अ टीचर, और सतगुरु भी है, प्रिसेप्टर भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते, संगम मीन्स कॉन्फ्लुएंस, द टाइम विच इज गोइंग ऑन, द आयरन एज इज गोइंग, लास्ट उसका समय चल रहा है, अंतिम समय की अंतिम घड़ियां, एंड द न्यू एज इज अबाउट टू कम। और इस समय हम नया सैपलिंग लगा रहे हैं। तो कल्प के संगम युग पर आते हैं। आपको सामने आ गया ना स्वदर्शन चक्र, घड़ी के 12 बजते हैं ना, ऊपर का दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, स्वास्तिका में टाइम व्हील नजर आ रहा है ना सबको, ऊपर 12 बज रहे हैं। तो इधर है आयरन एज लेफ्ट साइड एंड गोल्डन एज हैज टू कम। तो इस कॉन्फ्लुएंस से इस पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। धर्म मीन्स धारणाएं, द वैल्यूज विच वी इनकलकेट इन आवर लाइफ इज धर्म। धर्म, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इज नॉट अवर रिलीजन। द सोल्स रिलीजन इज टू इनकलकेट डिवाइन वैल्यूज, गॉडली वैल्यूज इन अवर लाइफ। लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लेस, these are all values. and सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हर चीज में वैल्यूज, संपूर्ण निर्विकारी। वी हैव टू लीव वाइसेस इन आवर लाइफ। वो हमें डिवाइन वैल्यूज अपने जीवन में लानी है। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता कि हमारा पिता सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम प्रिसेप्टर है। He is making us worthy for the new world. अभी जैसे डॉक्टर बनना है तो टीचर पढ़ाते हैं, उसके लायक बनाते हैं। वो वैल्यूज, किसी को बैरिस्टर बनना है, जज बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो कॉलेज में जाकर वो एजुकेशन मिलता है उनको। इन द सेम वे, अगर हमें डिवाइन बनना है, अपनी लाइफ में डिविनिटी लानी है, सो विजुअलाइज द गॉड इज मेकिंग अस डिवाइन। That's why we say God created man in his own image. Now today Baba says, गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। He is so innocent कि बच्चों ने जो भी कुछ कहा उसको, वो सब कुछ माफ करके अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आता है। ओम शांति। Now you know the meaning of Om Shanti. Baba says, he repeatedly says, Om means A-U-M. A for action, U for utterance, and M for my mind. Om. Om means I, the soul. All these faculties are with the soul. So Om means I, the soul, and this is my body, my costume. And Om Shanti, the religion of soul is to be peaceful. My home is the world of peace, and my father is ocean of peace.
That's why we say Om Shanti 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 Om. Om Shanti, I the soul, my religion is peace. My home is the home of peace, the soul world, and my father is ocean of peace. Right? Right? Yes, yes. So Baba is saying, you know the meaning of Om. And who speaks? The soul speaks through this mouth. And when both are together, only then we can say, मेरी आत्मा. और आत्मा कह सकती है मेरा शरीर. If both are separate, neither the soul can do anything, nor the body can do. Right? You have a car. When will car move? When the driver is inside. Yes? And when the driver is out, the car and driver are separated, will car move? No. Same is here. So we only can come in action when the soul is inside. So Baba is trying to teach us this thing, number one. Then Baba is saying, when you came in this world, तब तुम क्या थे? पुण्य आत्मा थे. Now Baba is giving us the conscience about the time. This time is going on. Cycle. सुबह हुई थी ना आज, अब रात आ गई ना. इसी तरह इस वर्ल्ड का जो टाइम व्हील है, ऐसे ही साल बीतते चले जाते हैं और सालों के साथ एजेस चेंज हो जाती है. गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन. डू यू ऑल एग्री? And now is the confluence. So we came in the golden age on this earth. We were the purest, in the purest form. The time passed by, the values, they deteriorated. We came in silver, then copper, then iron age. And now is again confluence age. फिर वो आता है, फिर से हमको पतित से पावन बनाता है. तो बाबा कहते हैं, तुमने कहा था ना कि बिगड़ी को बनाने वाले आ जाओ. अब बिगड़ी क्या थी? हमारी वैल्यू सब डिटीरियोरेट हो गई थी, जिसके कारण हम कितने दुखी हो गए थे. अब पाप कर्म करने लगे, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए. आजकल देखो सब लोग क्या क्या कैसे कैसे कर्म करते हैं. तभी कहते हैं ना कि कलयुग के क्या चिन्ह है, जहां दुर्योधन हो, दुशासन हो, जहां सब पाप कर्म करने वाले हों. अगर आपके पास सत्ता है तो सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है. अगर आपके पास धन है तो धन का आप दुरुपयोग कर रहे हैं. अगर आपके परिवार है तो परिवार में शकुनी जैसे जो आपस में लड़ाते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करा देते हैं, है ना. आज वो हालत है संसार की. तो कहते हैं ना कि बिगड़ी को बनाने वाले आजा. माना वी बिकेम कंप्लीटली इंसॉल्वेंट एंड नाउ द फादर इज हियर. He purifies us to make us completely solvent. तो हमको फिर से solvent बना रहा है. बाबा कहते there is no college जहाँ आपको ये knowledge मिलती है. मिलती है कहीं भाई? बताइए, ये knowledge कहीं और मिलती है? And not even written in any of our scriptures correctly. कि भगवान ने कहा. हम कहते हैं गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ना, और उसमें कहा भी जाता है भगवानो वाच, लेकिन इतना क्लियर नहीं है कि हाउ आई कम, हु इज माई कॉस्ट्यूम, बिकॉज ही इज बॉडीलेस, ही इज ऑल्सो सोल, ही इज द सुप्रीम सोल, ही नीड्स अ कॉस्ट्यूम. किस कॉस्ट्यूम में आएगा? विल ही गो टू द मदर्स वोम? विल ही गो टू मदर्स वोम? यस और नो? नो, नहीं. सो ही टेक्स अ ओल्ड कॉस्ट्यूम. He takes a chariot who's already grown up, old costume, and he becomes a co-driver, Sarathi bankar. He sits in the forehead. Right? Clear सबको? Clear? Co-driver बनके, and he uses that costume. उसके अपना शरीर नहीं है. शरीर लेगा तो छोटे से बड़ा होगा, तो उसको भगवान थोड़ी कहेंगे. He is a जन्मा अभोक्ता. वो जन्म नहीं लेता तो कर्म नहीं करता हमारी तरह, और कर्म करेगा तो कर्म पाप और पुण्य होंगे, उसका फल होगा.
like we human beings. So he is अजन्मा अभोक्ता, इसीलिए उसको निर्गुण कहते हैं, क्योंकि वो ना सतो प्रधान है ना वो तमो प्रधान बनता है। जैसे हम लोगों की एजेस है ना, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सतो प्रधान, सतो रजो, यानी सॉल्वेंट से हम डिटीरियोरेट होते हैं इंसॉल्वेंट। ही डजंट कम इन ऑल दीज चक्कर। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ, मैं आकर तुमको प्योरीफाई करता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। और फिर बाबा कहते हैं मैं बातें तुम ब्राह्मणों से करता हूँ। पहले तुम शूद्र थे, आयरन एजेड थे, अभी तुम इस कॉन्फ्लुएंस एज में आए ब्रह्मा मुख से। ब्रह्मा द क्रिएटर फादर, जनरेशन थ्रू ब्रह्मा, और जिसको हम एडम कहें, जिसको हम आदम कहें, उसके थ्रू ये नॉलेज हमको देता है। और फिर हमको कहता है यू आर द हाईएस्ट, चोटी ब्राह्मण्स, और तुम ब्राह्मण्स को मैं पढ़ाता हूँ। फिर ये 3 रिलीजन्स होते हैं, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता जो नापास होते हैं वो क्षत्रिय वंश में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम 21 जन्म सुख, यानी दिस टाइम वी आर मेकिंग अवर फॉर्च्यून फॉर 21 बर्थ्स। इज दैट क्लियर टू यू? हर जन्म में हम एक जन्म करते हैं, उसका एक जन्म प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ वी आर अर्निंग फॉर 21 बर्थ्स। वहां फिर एक जन्म का एक जन्म नहीं कमाना पड़ेगा हमको, वहां 21 जन्म यहाँ की कमाई, इतने भरपूर खजाने होते हैं जो हम हर जन्म में उसका प्राप्त करते हैं। यहाँ ही हमारे 21 बर्थ्स के लिए डिसाइड हो जाता है, राइट? फिर आज एक बहुत सुंदर बात बाबा ने जो क्लियर की कि जो भी नए नए धर्म स्थापक आए, द लाइक क्राइस्ट केम इन दिस वर्ल्ड, तो क्रिश्चियनिटी उन्होंने एस्टैब्लिश की, बट बाबा कहता है क्राइस्ट आया, दैट वाज हिज फर्स्ट बर्थ। द्वापर में आए ना क्राइस्ट, अब से कब आए कि 2000 साल पहले आए, तो क्राइस्ट का वो फर्स्ट बर्थ है एंड ही इज इन हिज प्योरेस्ट फॉर्म। लेकिन क्रूसिफिकेशन हुआ क्राइस्ट का, तो बाबा कहते हैं उसको दुख नहीं मिल सकता, बिकॉज दिस सोल इनकारनेटेड इन अनदर कॉस्ट्यूम। जैसे शिव बाबा इनकारनेट हुआ ना, गॉड फादर इनकारनेट हुआ इन द चैरियट ऑफ ब्रह्मा बाबा, राइट? राइट, क्लियर? गॉड फादर इनकारनेट हुआ इन अनदर कॉस्ट्यूम ऑफ ब्रह्मा बाबा। इन द सेम वे बड़ी अच्छी हैप्पी न्यूज है कि क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन नहीं होता, उसकी आत्मा को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। जिस कॉस्ट्यूम को उन्होंने लिया वो उसका क्रूसिफिकेशन होता है। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर बताया कि तुम बच्चे ही आते हो इस पुराने शरीर में, क्राइस्ट का हो गया। फिर बाबा ने बताया कि हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है, टीटी डायनेस्टी इज अवर बर्थ राइट, बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ सुप्रीम फादर। और सुप्रीम फादर से हमको जो मिलेगी सौगात भी तो अच्छी मिलती है ना। तब कहते हैं खुदा जब आते हैं तो तिरी पर बहिश्त लेकर आते हैं। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने कैसा बनाया इंसान को? अपने जैसा बनाया। भगवान भगवती पूजन योग्य फरिश्ते बनाया उसने हमको। इस धरती पे जीते जागते डिवाइन ह्यूमन बीइंग्स बनाया। वी हैड ऑल डिवाइन कैरेक्टर्स। हर्षित मुक्ता है, धैर्यता है, मधुरता है, कितने अच्छे लगते हैं ये कैरेक्टर्स। आप देखिए जो डिवाइन लोग हैं कितने सुंदर लगते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं, प्रेम जैसे बहता रहता है उनके नेत्रों से, मुख से, सदा हर्षित है। कभी देखा किसी को बीमार, कभी देखा किसी को क्रोध करते हुए? कितने डिवाइन खूबसूरत है, इसीलिए लोग उनको, अब आप देखिए कृष्ण को सभी कितना लाइक करते हैं। आज भी विदेशों में भी लोगों ने कृष्णा कॉन्शियस भाग रहे हैं भारत की तरफ उसको देखने के लिए। गॉड मेक्स अवर लाइफ लाइक दैट। इतना डिवाइन वो हमको बनाता है। तो हमें फिर कितना ना इस पर अपने लिए ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वी केम फ्रॉम दी वर्ल्ड ऑफ सोल। हम अपने घर से तो अशरीरी आए थे, वी हैड नो कॉस्ट्यूम,
वी गॉट दिस कॉस्ट्यूम इन दिस वर्ल्ड, और उसके द्वारा हम पार्ट प्ले करते रहे. सो इन द गोल्डन एज आवर कॉस्ट्यूम्स वर डिवाइन एंड ग्रेजुअली दे डिटीरियोरेटेड. आज आप देखिए हर एक के कॉस्ट्यूम कैसे हो गए. हर एक को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, तन से बॉडी, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, एवरीबडी इज सिक nowadays. But God makes us so happy और हमारी काया को निरोगी, हेल्दी बनाता है, एवर हेल्दी. जहां मन भी दुरुस्त है, मन भी हेल्दी है. हम लोग बताते हैं ना WHO की डेफिनेशन, हेल्थ इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट द पर्सन शुड बी फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी. मन, हमारा तन, हमारी सोशल लाइफ, ये सब हेल्दी होनी चाहिए. और इसका फाउंडेशन है व्हेन आई एम स्पिरिचुअली हेल्दी. मन मेरा हेल्दी है, सुखी है. इसीलिए कहते हैं मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना. अगर मन दुखी है तो हम कितने भी सुखी हो, तन कितना भी शक्तिशाली हो, वो भी बीमार हो जाएगा. आप कभी देखो, किसी दिन आप बहुत खुश होते हैं, कुछ आपसे बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आप कितने भी बीमार हो तब भी आपको लगेगा आई एम फीलिंग सो हैप्पी. एकदम आपकी बीमारी आपको भूल जाती है. आजकल हम इसी तरीके से खुश रहते हैं. जैसे मान लीजिए कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन अगर मन हमारा खुश है ना, बैठा है बाबा सब कुछ देखो गोदी में चुकवा रहा है, ये हिसाब किताब सब चले जाएंगे, हम बोल देते हैं बाबा इतना आपको दे दिया ना, अब इसको चलाइए. तो ऐसे लगता है कि जैसे प्राण फिर से वापस आ जाते हैं, हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है काम करने की. इसलिए मन अगर पावरफुल है, माय माइंड इज पावरफुल. माइंड तब पावरफुल रहेगा व्हेन इट इज कनेक्टेड, जब ये कनेक्टेड है टू द सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी. दैट इज द बैटरी, हाईएस्ट बैटरी, जिससे हमारा पहले कनेक्शन ही नहीं था. आज उससे कनेक्शन है तो आज हमारी बैटरी चार्ज हो रही है. जस्ट लाइक अ मोबाइल, सी हाउ मेनी टाइम्स वी चार्ज. आज हम इस बैटरी से सारा दिन कितने संबंधों में आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, क्या क्या हमारे सामने आता है, उस सब के लिए एनर्जी तो चाहिए ना. सो वी हैव टू चार्ज आवर बैटरी थ्रू आउट द डे. दैट इज द बेस्ट. ये थोड़ी देर के लिए नहीं है, निरंतर. याद रहे जो हमारे लिए इतना दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ आई रिमेम्बर, ऐसा प्यारा खुदा दोस्त कहाँ मिलेगा. अगर मैं उसको दोस्त बना लूं, कभी पिता बना लूं, कभी मैं अपना उसको डॉक्टर बना लूं, कभी सखा, कभी उसके साथ में अपना भाईचारा कर लूं, कितना मजा आता है. डिफरेंट डिफरेंट, कभी वो मेरा साजन है, कितना सुंदर श्रृंगार रहा है वो मुझे, दिव्य गुणों से श्रृंगार कर रहा है. आज वैल्यूज गुणों की है. कोई भी क्रोधी है, कहता है भाई डर लगता है इसके पास नहीं जाएंगे. और अगर आप प्यार से बोलते हैं, किसी को आप अप्रिशिएट करते हैं, तो वो कितना खुश होता है. वो 10 बार आपके पास आकर बैठेगा, यार मजा आ गया इसके पास, पूरी एनर्जी चार्ज हो जाती है बैटरी, हम दुख भूल जाते हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. और प्रॉब्लम सब टल जाती हैं. सारी जो आज की बातें हैं, या तो भोगनाएं भोग रहे हैं, पुराने जो हिसाब किताब हैं वो भोगनाओं के रूप में आ रहे हैं. भगवान मुझे ही क्यों दुख दे रहे हो तुम. भगवान थोड़ी दे रहा है, भगवान ने तो बता दिया जो तुमने किया उसके फल आ रहे हैं. लेकिन उसने ये भी तरीका बता दिया कि मुझे याद करो, तो जो पुराने खाते हैं वो सब चुकतू हो जाएंगे. अब तुम बुरा नहीं करोगे तो फ्यूचर के लिए भी, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मेरे तीनों ही इतने फर्स्ट क्लास बन रहे हैं समय. सो वी शुड हैव द ब्यूटीफुल connection with the supreme power. So this is a wonderful thing. तो आज हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि I have to purify myself to be worthy of for the future reign in my hand. और उसके लिए पहले स्वराज्य अधिकारी, be the ruler and controller of yourself now for all the 5 senses and for all the 3 subtle powers, my mind, my intellect and my resolves, my latencies.
इसका मुझे मालिक बनना है, कंट्रोलर एंड रूलर दोनों बनना है। और बी सोल कॉन्शियस, अशरीरी बनो। जितना जितना अशरीरी बनेंगे बाबा की याद आएगी और हम प्योरीफाई होते रहेंगे और उसको हमें निरंतर याद करना है। फिर आज वरदान बहुत सुंदर है कि निवारण स्वरूप भव, माना यू शुड हैव सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। डू नॉट बी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन ऑन दिस वर्ल्ड। आज ये प्रॉब्लम, नो नो टू प्रॉब्लम्स नाउ, आई हैव सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। क्योंकि एक बल एक भरोसा, हाँ, हम एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन हो जाएं जो संसार में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति भी है ये अनुभव ही ना हो जाए। कहते ना ये बड़ी अपनी लगन में मगन है, यानी एक धुन लग जाए जो मुझे वही जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, यानी वही मेरे सामने दिखाई दे तो उसका प्रभाव, आई विल बिकम एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट ही इज। कहते ना फादर हैज शोन हिमसेल्फ टू हिज सन्स, नाउ सन्स हैव टू शो फादर कि वो किस पिता की संतान है। तो बाबा कहते हैं एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। दे आर ऑलवेज गोइंग हायर एंड हायर एंड हायर। उनकी जो कंडीशन है बहुत खूबसूरत, उड़ती कला होती है, उनके पांव धरती पर नहीं पड़ते। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बन जाते हैं। प्रॉब्लम्स की जगह वो सॉल्यूशंस देने वाले बन जाते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं, वो कभी भी डरेंगे नहीं, हाय ये हुआ हाय हुआ, वो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। फिर बाबा ने कहा आज का स्लोगन अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वायरलेस होता है ना, बेतार की तार जुट गई। अशरीरी, इफ यू बिकम सोल कॉन्शियस ऑटोमेटिकली यू हैव कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर, और उसके लिए वाइसलेस बनना बहुत बहुत जरूरी है। आज जो हमारे जीवन में कहते हैं ना काम को, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब ने हमको, इंसान कोई भी बुरा नहीं है, ये बुराइयों ने उसको बुरा बनाया है, जिसको हम रावण का प्रतीक मानते हैं। रावण वो जो रुलाए, डेविल, डेमन, उसको हमें मारना है और जला देना है। मतलब जो सीड है उस सीड को बर्न कर देना है। सीड्स ऑफ ऑल दीज वाइसेस, दे हैव ब्रॉट माय सिचुएशन डाउन, जिसने मुझे गिराया है। आज मुझे अपने आप को एलिवेट करना है, टू हैव कनेक्शन विद द सुपर पावर। तो आइए हम सब मिलकर आज ये प्लेज करें कि वो कितना कृपालु है, कितना रहम दिल है, मर्सीफुल है, जिस पिता ने हम बच्चों को ढूंढा इस इतनी बड़ी दुख भरी दुनिया में, इस इतने बड़े संसार में, उसने आकर हमको ढूंढा, ढूंढकर अपनी प्यारी सी सुखदाई गोद दी। एंड नाउ ही इज ट्रेनिंग अस, ही इज एजुकेटिंग ऑल्सो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। सिर्फ एक ही कॉस्ट है कि आई हैव टू कम डेली इन दिस क्लास। अपने लिए समय निकालना है। ये खाली एक एपिसोड नहीं है, वी हैव प्लेड मैक्सिमम 84 वर्स, 84 रोल्स। हमने अपने 84 कॉस्ट्यूम्स हमने चेंज किए हैं। तो हमें कितना ध्यान होना चाहिए कि इन सब के लिए मुझे कमाई का समय सिर्फ यही एक छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग इस कॉन्फ्लुएंस एज पर मिला है। तो हम तैयार हैं इसी जर्नी के लिए। यस, क्या कहता है मन? आर वी रेडी? यस और नो? मैं अगर आपको अनुभव सुनाऊं तो जिस दिन से ये ज्ञान मिला है, आई एम नॉट बोस्टिंग, वी हैव नेवर मिस्ड इवन अ सिंगल डे। मेरे दोनों पाँव भी टूटे हुए थे, हाँ, दोनों पाँव में प्लास्टर था, लेकिन क्लास हम लोग रेगुलर जाते थे। उठा कर बिठाया, वहाँ से अंदर घुस गए। अभी तो इतना इजी हो गया, घर घर में जूम हो गया, सब कुछ हो गया, मोबाइल पर बटन दबाते ही हमको सब कुछ मिल जाता है, वी आर कनेक्टेड। उस जमाने में मुरलियाँ भी
पोस्ट से आती थी, लेकिन हम लोगों ने क्लास कभी मिस नहीं किया और हरदम यही ध्यान रहता था कि जो हम ले रहे हैं हम अपने परिवार को, बच्चों को जरूर ये टेस्ट दें। इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि आज की दुनिया में हम माता पिता उनके साथ हर जगह नहीं जा सकते हैं। वी शुड एम्पावर अवर न्यू जनरेशन। बच्चे इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, क्योंकि सोल्स तो वो जन्म लेते लेते क्या क्या उन्होंने इतने अच्छे रोल्स प्ले किए, हमसे भी ज्यादा अनुभवी होंगे। लेकिन जब हम उनको ये देते हैं तो उनको समझ आता है। वी मस्ट impart this knowledge to whosoever comes in my life, especially to my close family। परिवार है और ये परिवार हमको इतना सुंदर प्यारा परिवार में बना देता है कि फैमिली एक बहुत ही खुशनुमा, जहाँ कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम, एक मंदिर जैसा, एक आश्रम जैसा स्थान हो जाता है, जहाँ भरपूर खुशियां हैं, जहाँ भरपूर सुख शांति का राज। आज यही तो चाहिए ना। आज दो लोग मिलते हैं, हाँ 4 लोग हैं घर में, एक किस कमरे में बैठा होगा, एक किस कमरे में कोई खाना लेकर कहीं जाएगा। बिलीव मी, वी आर ऑल फैमिली मेंबर्स। वी शुड वेट फॉर ईच अदर। वी शुड सिट टुगेदर एट लीस्ट 1 मील एट नाइट। आजकल तो खैर बंद है, लॉकडाउन पीरियड है, तो वी आर ऑल टुगेदर इन द फैमिली। सच अ वंडरफुल टाइम दैट वी गॉट दिस टाइम to be together in the family and to be a part of this godly family। नहीं तो ये ज्ञान कहाँ मिलता, हम लोग कहाँ तक पहुंच पाते। ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इस कोरोना काल में आज हम लोग इंटरनेशनली भी एक दूसरे से कितने क्लोज आ गए हैं। लगता है आपको ऐसा? मुझे तो बहुत खुशी होती है मिल करके। हाँ, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग कितने क्लासेस में भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हैं, बहुत मजा आता है और हंसते बेलते हैं। और ये ज्ञान तो इतना मजेदार है ना फैमिली में रहने वालों के लिए। इसके लिए कमंडल उठाकर भी हमको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान तो एक 4 की फैमिली से वो कहता है द होल वर्ल्ड इज योर फैमिली। तो हर एक के साथ मिलजुल करके हमको चलना है। दिस मुरली इज अ वंडरफुल फूड फॉर अवर माइंड। सो आई थिंक we all will we all love to listen what he wants to talk to his children, है ना। भगवान से अगर प्यार है तो वो हमसे क्या कहना चाहता है। अगर हमें किसी से प्यार है तो हम उसकी बातें कितने प्यार से सुनते हैं ना, फिर उसको जीवन में भी लाते हैं। हाँ जी या नहीं जी, यस और नो? हाँ, है ना। तो घर में भी जिसको हम प्यार करते हैं उसकी बातों को हम सुनते हैं और उसको अपने जीवन में लाते हैं। एंड ही इज द गाइडिंग फोर्स इन आवर लाइफ, राइट। श्रुति बहन, कोई किसी के क्वेश्चंस है? मैं टाइम देख करके आई हैव, बिकॉज द टाइम इज अप टू 8, सो मैंने उसको Not exactly questions, but there are gratitude notes and just saying share this beautiful class with us। आपने तो प्यार के सागर का पूरा स्वरूप बनकर यहाँ पर हमें क्लास कराती है और सब उसको दोबारा सुनेंगे। तो क्वेश्चन तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ सबने थैंक यू बोला है आपको। शुक्रिया सभी की तरफ और से। शुक्रिया तो उस मालिक का है, उस परम शक्ति का है, जिसने प्यार के सागर ने आकर हमको ये सब ज्ञान दिया। नहीं तो हम कहाँ अंधेरे में ही चले जाते थे। आज देखो जिन लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है, आज हम लोग बैठे हैं। वी 3 आर डॉक्टर्स इन दिस फैमिली एंड इवन मोनिका ऑल्सो गेटिंग मैसेजेस, प्लीज हेल्प अस, प्लीज कहीं बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। हाँ, कितना तरस रहा है इंसान आज जिंदगी में 2 पल सांसों के लिए, जिसके लिए कभी हमने वैल्यू ही नहीं रखी। आज उस जीवन के लिए आज हम देखते हैं कि इस ज्ञान के लिए, इस ज्ञान के कारण, आज इस ज्ञान के कारण हम अपने आप को भी स्टैंड कर पाते हैं और इस सारे विश्व में अपने भाई बहनों को भी वो शक्ति दे पाते। बिलक बिलक कर टेलीफोन पर रो रहे हैं, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। तो
जितना हो सके समय से पहले दे दो। कल को कोई ये ना कहे कि तुमने हमें बताया नहीं, तुमको पता था। You used to go to the class. We should impart this knowledge liberally, lovingly, generously. हमें रहम आना चाहिए. We should mercy on the mankind. We should mercy on this nature. हमने इसको कितना रिव्यू किया है, कितना हम आपस में. अब देखो घर में भी दो लोग प्यार से नहीं रह सकते. भगवान ने तो दूर दूर से हमारे संस्कारों को एक कर दिया. बच्चे प्यार से चलो, प्यार के सागर के बच्चे, प्यार की बहती हुई गंगा बनो. लव दिस मैनकाइंड, लव दिस मदर नेचर, प्यूरिफाई इट, प्यूरिफाई योर माइंड, प्यूरिफाई द माइंड्स ऑफ द होल वर्ल्ड. सो हम लोगों को बहुत बहुत प्यार आना चाहिए और उस खुदा के लिए, उस भगवान के लिए, उस गॉड फादर के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने हमें धर्म की दीवारें, देश की दीवारें, तेरे मेरे की दीवारें, ऊंच नीच की दीवारें, छोटे बड़े की दीवारें, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन सबसे दूर कर दिया. वी डोंट सी मेल और फीमेल, वी सी ईच एंड एवरी सोल एज अ loving my brother, my own kids and kids. That's how, you know, this journey of from 1936 till this date, आज हम कहाँ तक पहुँच गए हैं. इतने वर्ष हो गए और आज विश्व में, सारे विश्व में ये नॉलेज फैल गया. कारण एक ही फाउंडेशन था, निस्वार्थ प्रेम सारे वर्ल्ड के लिए. बाप ने हमको आकर यही सिखाया, हमारे पिता ने, जो आज ये पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी का मैसेज दे रहे हैं. हम लोगों की इतनी अच्छी पालना, आप देखिए कहाँ कहाँ से आकर आश्रमों में बहनों ने जीवन दिया है. उन लोगों के भी परिवार थे, लेकिन नहीं, they had the value for the whole world, कि हमको पूरे मैनकाइंड की सेवा करनी है. अपनी एजुकेशन, हाई क्लास एजुकेशन लेकर भी, और जिन्होंने वो नहीं भी लिया वो भी आज जो भगवान का रथ है, जिसके द्वारा अभी आप ये मुरलियों का करेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा कि क्या क्या गॉड फादर ने रिवील किया है. हम लोगों का मॉर्निंग क्लास अमृत वेले होता है, जहाँ हम अव्यक्त मुरलियाँ डेली करते, रोज साकार ये मुरली. नोबडी मिसेस दोस क्लासेस. भगवान ने क्या क्या रिवील किया है, भंडार है ज्ञान का. एंड माय दादी, जिस दादी के तन में वो बाप दादा आते हैं, वो कभी स्कूल तो गई नहीं. 9 साल की बच्ची यज्ञ में सरेंडर हुई. एंड वंडरफुल ज्ञान. कोई मतलब हम 10 बार मुरली को पढ़े, वो रिपीट नहीं कर सकते वो लैंग्वेज. हम जो भगवान सुना रहा है, आप थोड़ा सा समय इसके लिए देंगे, आपको बहुत आनंद आएगा कि हम कहाँ थे. सो डिवोट योर टाइम. और ये टाइम डिवोट नहीं करना, आप कितनी व्यर्थ चीजों से, नेगेटिव से, बीमारियों से, परिस्थितियों से बच जाएंगे और सारे जग का सहारा बनेंगे. दुनिया देख रही है, हम ऐसे सहारे दाता बने. भगवान का सहारा दुनिया को उसके सहारे से जोड़ दे, जो उसको आज भी ढूंढ रही है. आजा रे. उनको पता ही नहीं आकर के वो कितना कुछ बांट रहा है. सूरज रोशनी दे रहा है, सूरज की गर्मी वो दे रहा है. हमें तो खिड़की दरवाजे ही खोलने हैं बस, है ना. अपने मन के खुले बंद द्वारों को खोलना है और उसको अपने जीवन में आने देना है. राइट. ओम शांति मंजू दीदी. ओम शांति. सुजाता दीदी बोल रही है. ओम हाँ शांति. जी, ओम शांति. ओम शांति सुजाता दी. ओम शांति जी. हम हमेशा से ही आपको देखते हैं ईश्वरीय सेवाओं में निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से. आप अपनी दृष्टि से, वाणी से, संकल्पों से इतनी शुद्ध पवित्र वाइब्रेशंस और ईश्वरीय ज्ञान गंगा बनकर बहना. और सबसे श्रेष्ठ बात ये है, भाग्य की बात ये है कि
हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, फिर उनके पिताजी डॉक्टर साहब और आप, मोनिका बहन, यानी पूरा ही परिवार भगवान ने धरती पर आकर नई दुनिया की स्थापना के लिए आप सभी का साथ लिया है। और भगवान के साथी बनकर पूरी ऑनेस्टी के साथ आप सभी इस गॉडली यूनिवर्सिटी में और इतने बड़े विश्व रूपी स्टेज पर बहुत ही प्यार से आप पार्ट अदा कर रहे हैं। और अभी आपका क्लास सुना, अनुभव भी सुना कि ईश्वरीय पढ़ाई को जिस दिन से आप बाबा के बच्चे बने, जिस दिन से आपने परमात्मा शक्ति को पहचाना, वो दिन से अभी तक एक दिन भी क्लास मिस नहीं किया। ये वंडरफुल बात, बहुत ही विशेष बात है और हम सभी को ये चीज सीखने को मिल रही है। तो जितने भी क्लास में भाई बहन हैं और जिन्होंने भी कोर्स सुना है शुरू से, तो सभी जानते हैं कि पूरा परिवार एक डॉक्टर फैमिली भी है और पूरा ही परिवार समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाओं में है। तो मंजू दीदी, ऐसे आप विश्व कल्याणकारी आत्मा है, वरदानी मूर्त आत्मा है और सारे संसार के लिए आप एग्जाम्पल हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान आप अपना जीवन जी रहे, है ना। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि हम अभी बेहद के रूप से सभी मिलते हैं और बेहद रूप से सेवाएं हो रही हैं और आप सभी दिल से इतनी सेवाएं करते हैं। तो बाप दादा की तरफ से भी हम अपने दिल से आपको ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार और ओम शांति। थैंक यू। थैंक्स आज आप आए, हम सबसे मिले। मोहित भाई ने भी 2 क्लासेस ली, बहुत ही वंडरफुल। मोनिका बहन तो रोज लेती है। तो मोनिका बहन और मोहित भाई, लौकिक रीति से बाबा ने आपको ये रत्न दिए हैं। वो माता पिता कितने भाग्यशाली है ना, जिनके कुल के दीपक ऐसे चमकते सितारे हो, इतने सुंदर संस्कारों वाले। तो आप भी भाग्यशाली, वो बच्चे कितने भाग्यशाली हैं कि इतने दिव्य माता पिता के पास जन्म लेना। तो हाँ, वो होता ही है, हम अपने भाग्य का वर्णन तो करते ही है, लेकिन आपके भाग्य का वर्णन दुनिया करे, वंडरफुल बात है। तो हम लोग तो आपके भाग्य का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि देख देख के बड़ी खुशी होती है। पालम विहार से भी उर्मिल दीदी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से क्लास कराई थी जी। हाँ जी, मोहित भाई भी आए थे, जहाँ जहाँ भी कंपनीज है, तो जब भी मोहित भैया को कॉल करो, हाँ जी दीदी, यस दीदी। बड़ी दीदी भी है हमारे साथ में, फिर आपसे कभी मिलेंगे। आज और एक क्लास वो आरसी में है, तो वहाँ कनेक्ट हो रहे हैं अभी। तो मंजू दीदी, बहुत 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 दिल से बाबा का और आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच दीदी, एंड थैंक्स टू माय फैमिली। जो नए बाबा के बच्चे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस डिवाइन फैमिली में, इस गॉडली फैमिली में, जो सारे विश्व एक परिवार है उसके आप कितने प्यारे प्यारे बाबा के बच्चे हैं। और अब ये संसार एक से अनेक बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये भी कहाँ शांत बैठेंगे, ये भी जन जन को बांटेंगे। दैट्स हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग। और हमारा दिन दुगनी रात चौगुनी ये तरक्की होती रहेगी। और सभी मिलकर, माता पिता सब घर में, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है घर में। मैं देखती थी कि बचपन से ही डॉक्टर साहब का भी बहुत गहरा रोल रहा बच्चों की पालना में। इसीलिए हम पहले बच्चों को अवश्य सुनाएं, और वो सुनेंगे हमारे चरित्रों से, हमारे व्यवहार से, हाउ वी बिहेव विद देम। थैंक्स ऑलमाइटी एंड थैंक्स टू आवर सिस्टर्स, जिनको मैं कहती हूँ ये हमारी यशोदा माँ हैं, जो हमें ये मक्खन खिला खिला के पालना करके इतना बड़ा बनाया है। सो थैंक्स टू दिस डिवाइन फैमिली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।